दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमआरएस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। एससीओ बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर जमकर भड़के राजनाथ। हिमाचल प्रदेश में पानी का कहर, विधायक सुधीर शर्मा की अपील। महाराष्ट्र वाशिम में भारी बारिश के बाद जलभराव। तो खबरें विस्तार से। एससीओ बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर जमकर भड़के राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। सिंह ने चीन के किंगदाओ में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। उन्होंने अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह कड़ी प्रतिक्रिया दी। राजनाथ सिंह ने कहा है कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीति के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। उन्होंने एससीओ से ऐसे देशों की आलोचना करने में संकोच न करने की बात कही है। उन्होंने आतंकवाद को मानवता के लिए खतरा बताया है और एससीओ सदस्यों से एकजुट होकर इसका मुकाबला करने का आह्वान किया। It is my pleasure to be here in Qingdao to participate in the SCO Defense Ministers meeting. At the outset, I would like to thank our hosts for their warm hospitality. I would also like to congratulate Belarus for joining the SCO family as a new member. Excellency, the world we live is undergoing a drastic transformation. Globalization, which once brought us closer together, has been losing momentum. The weakening of the multilateral systems has made it harder to address urgent challenges, from maintaining peace and security to rebuilding economies after the pandemic. At the same time, competition between major powers is intensifying, with trade and technology being increasingly used as tools in geopolitical rivalries. Excellency, India believes that the reformed multilateralism can help build cooperation to prevent conflict between countries by creating mechanisms for dialogue and collaboration. No country, however, large and powerful, can manage alone. In fact, the very idea of the global order, or indeed of multilateralism, is the assumption that nations have to work with each other for their mutual and the collective benefit. This is also reflective of our age-old Sanskrit saying, Sarva Jana Sukhino Bhavantu, which implies peace and prosperity to all. Excellency, it is in the context of the current uncertain geopolitical scenarios that the role of SCO becomes very important today. SCO member countries contribute around 30% of the global GDP, while about 40% of the world's population reside in them. We therefore have a collective stake to create a safe, secure and stable region that can contribute towards progress and improvement of our people's lives. Excellency, I believe that the biggest challenges that we are facing in our region are related to peace, security and trust deficit. And the root cause of these problems is increasing radicalization, extremism and terrorism. Excellency, peace and prosperity cannot coexist with terrorism and the proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups. Dealing with these challenges require decisive action, and we must unite in our fight against these evils for our collective safety and security. It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right
to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe, and we will not hesitate to target them. We should also take proactive steps to prevent the spread of the radicalization among our youth. The RATS mechanism of SCO has played a significant role in this regard. The joint statement of the Council of SCO heads of state on countering radicalization leading to terrorism, separatism, and extremism, issued during India's chairmanship, symbolizes our shared commitment. Excellencies, we should seek to counter the technology used by terrorists, including drones, for cross-border smuggling of weapons and drugs. In our interconnected world, traditional borders are no longer the sole barriers against threats, and instead we face an intricate web of challenges that range from transnational terrorism and cyber attacks to hybrid warfare. These threats do not respect national boundaries, and they demand a unified response rooted in transparency, mutual trust, and collaboration. India reaffirms its resolve to fight terrorism in all its forms and manifestations. On 22nd April 2025, the terror group, the Resistance Front, carried out a dastardly and a heinous attack on the innocent tourists in Pahalgam, in the Indian state of the Jammu and Kashmir. 26 innocent civilians, including a Nepali national, were killed. Victims were shot after they were profiled based on their religious identity. The Resistance Front, which is a proxy of UN-designated terror group Lashkar-e-Toiba, claimed responsibility for the attack. The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation, whenever, wherever, and by whomsoever committed. SCO members must condemn this evil unequivocally. Excellency, India is committed to increasing its connectivity with the Central Asia. Better connectivity not only enhances mutual trade but also fosters mutual trust. However, in these efforts, it is essential to uphold the basic principles of the SCO Charter, particularly respecting the sovereignty and the traditional integrity of member states. India has been consistent and steadfast in its policy in support of peace, security, and stability in Afghanistan. Our immediate priorities in Afghanistan include providing humanitarian assistance to Afghan people and contributing to Afghanistan's overall developmental needs. As Afghanistan's largest regional development partner, India continues to implement capacity building initiatives for the Afghan people. Excellencies, the COVID-19 pandemic has laid bare the fact that the pandemics recognize no boundaries and that no one is safe till everyone is safe. This is a warning sign of how non-traditional security challenges like pandemics, climate change, food and water security, and associated
societal disruption can impact our people's lives. These emerging challenges cannot be addressed without responsible policies and cooperation among nations. India's initiative on Coalition for Disaster Resilient Infrastructure aims not only at promotion of disaster resilient infrastructure, but also infrastructure risk management, standards, financing and recovery, etc. It is also an example of how countries are coming together to create and share capabilities to deal with the humanitarian assistance and the disaster relief. We have affirmed this intent through our policy through the acronym SAGAR, which implies security and growth for all in the region, and India's expanded vision Mahasagar, meaning mutual and holistic advancement for security and growth across regions. Security and stability are most essential components to create a conducive environment for growth and economic development of the region. India has sought to build consensus on dealing with global challenges on the basis of motto One Earth, One Family, One Future, which is founded on our civilizational ethos of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. Mutual understanding and mutual benefit must be our guiding principles. Excellency, India supports greater cooperation and mutual trust among SCO members. We should collectively aspire to fulfill the aspirations and expectations of our people as well as tackle today's challenges. We must all be in lockstep in our endeavor in strengthening stability and security in our neighborhood. Excellency, I am optimistic that the today's discussions would help us to deepen the understanding of our shared security challenges and explore new areas for future cooperation in the defense and the security field. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में पानी का कहर, विधायक सुधीर शर्मा की अपील। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और जल प्रलय का कहर जारी है। धर्मशाला में अचानक पानी का बहाव तेज होने से बड़ी त्रासदी की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के अनुसार 15 से 20 लोग बह सकते हैं। विधायक सुधीर शर्मा ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मेरे अनुसार पानी का बहाव अचानक बढ़ने से 15 से 20 लोग बह गए हैं। यह एक बहुत बड़ी त्रासदी है, सरकार को इसका तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि हम प्रभावित परिवारों के साथ हैं, उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार को इस मामले में संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए और राहत कार्यों में तेजी लानी चाहिए। मानना है कि 15 से 20 लोग बह गए हैं। उसका कारण ये है कि ये जो मेरा घर है उससे 1 किलोमीटर भी ये जगह नहीं है और ये हमारा गांव है। तो यहाँ से जब पहली सूचना आई थी गांव वालों की तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया था कि भाई साहब 15 से 20 लोग बह गए, बहुत ज़्यादा पानी आया है। और आंकड़ा वही है, सरकारी आंकड़े तो बाद में आए जब टीमें पहुँची हैं, मौके तक गई हैं। अब तो ऊपर तक अभी रास्ता खुला ही नहीं है और डेड बॉडी कितना नीचे 700-800 मीटर तक एक डेड बॉडी मिली है। जो मशीनरी थी, बड़ी बड़ी पोकलेन्स और ये जेसीबीज, उनके सिर्फ टायर मिले हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी को ढूंढना कितना मुश्किल है। और ये जो यहाँ पर आगे कॉन्ट्रैक्टर को आगे सब कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था प्रोजेक्ट वालों ने लेबर रखने का, सारी लेबर चंबा, किहार, सलूनी, जम्मू से लोग आए हुए थे रोजी रोटी के लिए। तो दुखद घटना है और मेरा तो मानना है कि ये प्रोजेक्ट को भी पेनल्टी लगा करके इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और सरकार, प्रशासन को हमने बार बार ये बताया था कि हाँ इलीगल माइनिंग हो रही है, पोर्टेबल क्रशर लगे हैं, उसके वीडियोज़ हैं। और यहाँ की जो हमारी पानी की स्कीम है उसको नुकसान हुआ, पंचायत ने धरना यहाँ पर दिया, उसका भी केस जो है वो मेरे बोलने पर, प्रेशर डालने पर फिर पुलिस थाने में रपट गई तो जा करके वो ठीक हुआ। तो ये ऐसे फ्रेजाइल स्ट्राटा के ऊपर जहाँ इतना पानी का गश आता हो मानसून्स में, प्रोजेक्ट्स की अनुमति होनी ही नहीं चाहिए, जिससे कि इतनी बड़ी त्रासदी का खतरा हो। और जिस तरह ये नाले के साथ साथ पेन स्ट्रोक को लाए, नाले को पूरा कवर कर दिया,
तो उसी का कारण है कि जब ये सारा कैचमेंट एरिया का पानी उसमें आया तो इतना बड़ा ये बहाव बना और उसके कारण ये नुकसान हो गया, लोग संभल नहीं पाए। आपकी तरफ से भी अब कोई स्टेप लिए जा रहे हैं, आप जा रहे हैं? जी, मैं मौके तक जहाँ तक पहुँच पाएंगे, अभी तो रास्ता खुला ही नहीं है, टीम्स भी ऊपर तक नहीं पहुँच पाई हैं। तो रात को तो ये भी बता रहे थे कि ऊपर भी काफ़ी लोग फंसे हैं अभी, लेबर के जो ऊपर की तरफ चले गए थे। तो अब बात करूंगा कि अभी क्या इनकी वास्तु स्थिति है और क्या चीज़ें हो रही हैं, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा। सरकार के समक्ष ये मुद्दा उठाएंगे? सरकार के समक्ष तो मुद्दा उठाने का कोई फायदा ही नहीं रहा इस प्रदेश में, क्योंकि जब मुद्दा उठाएंगे तो उसका जवाब कुछ और आता है, प्रश्न कुछ और होता है, नतीजा कुछ और निकलता है। पूरे प्रदेश में इस तरह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी त्रासदी हुई है यहाँ पर, सरकार को संवेदनशील होकर के इसका संज्ञान लेना चाहिए। इस प्रोजेक्ट पर पहले भी कुछ हादसे हुए हैं, लास्ट ईयर भी फ्लैश फ्लड आए थे, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये मैन मेड मिस्टेक्स हैं? एब्सोल्युटली, ये 100% मैन मेड मिस्टेक है। ये जगह ही नहीं है जहाँ पर ये फ्रेजाइल स्ट्राटा है। ये शुरू से यहाँ पर जो है वो हाथ से स्लेट्स को गरीब लोग निकालते हैं, डेली वेजेस जा करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो यहाँ इस तरह का प्रोजेक्ट इतना बड़ा लगा देना, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप फ्रेजाइल स्ट्राटा पे जब खड़ा कर देंगे तो ये हादसा नहीं होगा तो और क्या होगा। वो आ रहे हैं मतलब बात। बढ़ते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र वाशिम में भारी बारिश के बाद जल भराव, जनजीवन हुआ प्रभावित। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में बीते कुछ घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे यातायात बाधित हो गया है। निचले इलाकों में घरों और दुकानों में भी पानी घुसने की खबरें सामने आ रही। स्थानीय प्रशासन ने हालात पर निगरानी शुरू कर दी है और आपदा प्रबंधन टीम अलर्ट मोड पर है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे बिना जरूरत के घरों से बाहर ना निकलें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।
बढ़ते हैं अगली खबर की। मॉडल मिलिंद सोमन ने फिट इंडियन रन को दी हरी झंडी। मॉडल और अभिनेता मिलिंद सोमन ने शिवाजी पार्क से फिट इंडियन रन को हरी झंडी दिखाई है। अभिनेता और मॉडल मिलिंद सोमन ने कहा है कि आज 5वां साल है, मैं हर साल एक हफ्ते के लिए समय निकालता हूं और रनिंग और साइकिलिंग करता हूं। अगर हमें अच्छी जिंदगी जीनी है तो हमें स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसका आनंद लेने के लिए स्वास्थ्य और फिटनेस जरूरी है। मैं थोड़ा सा समय निकालता हूँ एक हफ्ते के लिए और मैं रनिंग और साइकिलिंग करता हूँ। इस साल इसका नाम है फिट इंडियन रन। तो फिट इंडियन रन का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि सारे इंडियन फिट हों, हमारे जैसे भी ना हो लेकिन थोड़े से फिट तो हो, क्योंकि वो हम समझते हैं कि देश का भला भी हो जाएगा और सबका भला हो जाएगा। हमको अगर अच्छी जिंदगी जीनी है तो हेल्थ और फिटनेस के ऊपर ध्यान देना थोड़ा सा जरूरी है। वैसे सब बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, योगा इंटरनेशनल डे भी मनाया जाता है, वो इसी कारण से कि सबको फिटनेस और हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और क्यों देना चाहिए? क्योंकि जिंदगी इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है, उसको एंजॉय करना और उसको एंजॉय करने के लिए हेल्थ और फिटनेस की जरूरत होती है। और फिटनेस का मतलब क्या है? सिर्फ सिक्स पैक का मतलब फिटनेस नहीं है, सिर्फ दिखावा कि मेरे बाइसेप्स है, मेरे फिटनेस है। हम काम क्या कर सकते हैं या क्या एंजॉयमेंट किस हद तक कर सकते हैं, जितनी जिंदगी देती है एंजॉय करने के लिए हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसके ऊपर आधारित होता है फिटनेस। कि कितना हमारा मन पॉजिटिव रहता है, कितना हम शांत रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका मतलब फिटनेस होता है। तो उसके लिए हम ऐसे थोड़े से इनिशिएटिव्स करते हैं जैसे फिट इंडियन रन। और मेरे लिए भी कि मैं अपने आप को टेस्ट करना चाहता हूं कि मैं गोवा से बॉम्बे 5 दिन में कैसे करूंगा, साइकिलिंग कितना करूंगा, रनिंग कितना करूंगा, मुझे फील कैसे होगा। अभी मैं 60 साल का हुआ हूं तो क्या फ़र्क है पिछले साल में और इस साल में, तो उसके ऊपर भी मुझे ध्यान देना चाहिए। तो जितना समय मुझे मिलता है दिन में, मैं कभी जिम जाता नहीं हूँ, मैं घर पे एक्सरसाइज करता हूँ 10-12 मिनट हर रोज, तो वो 10-12 मिनट में मुझे क्या करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी इमरजेंसी का कर रही है गलत प्रचार। देश में 11 साल से अघोषित आपातकाल चल रहा है, बोले सपकाल। आपातकाल की वर्षगांठ पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सामाजिक कार्यकर्ता और विचारक सपकाल ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इमरजेंसी के नाम पर सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, जबकि देश पिछले 11 सालों से एक अघोषित आपातकाल की स्थिति में जी रहा है। सपकाल ने कहा है कि आजादी, अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है वह किसी घोषित आपातकाल से कम नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, मीडिया पर नियंत्रण बढ़ा है और आम नागरिकों की आवाज को दबाया जा रहा है। जो इमरजेंसी जो लगी थी वो इमरजेंसी संविधानिक जो वहां का जो संविधानिक धारा जो है उसके तहत लगाई गई, इसको इसलिए उसको असंवैधानिक कहना यह हास्यास्पद है। बहरहाल उसके में से कोई जातियां जब हुई थी या पुलिस के द्वारा कुछ जो हुआ था उसको लेके ये गलत हुआ था, ये खुद इंदिरा जी ने और पश्चात राहुल जी तक सब नेताओं ने कहा है। मगर जो इमरजेंसी लगी थी उसकी एक अपनी एक अपरिहार्यता थी, उस वक्त की एक काल की सापेक्षता थी और उस वक्त की जो एक कुल परिस्थिति थी उस पर रोशनी डालने की भी आज आवश्यकता है। और गणतंत्र में झूठ बोलने के बजाय सच पे, मेरिट पे डिस्कशन होता है तो उसका स्वागत है। और क्या मेरिट था और क्या स्थितियां थी, ये स्थिति को दर्शाने वाला एक चिट्ठा हमने हमारा जो शिदोरी हमारा जो मुखपत्र है उस मुखपत्र के माध्यम से सभी उस वक्त की इमरजेंसी की क्या कारण मीमांसा थी, क्या था, ये सभी दर्शाने के लिए हम उसको लिखित स्वरूप में प्रकाशित कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर क्या। आपातकाल के समर्थक जेपी का किया अपमान।
आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर पश्चिम बंगाल विधानसभा के विपक्षी नेता और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी वही कर रही है जो 1975 में आपातकाल के दौरान हुआ था। उन्होंने कहा है कि इसीलिए वह संविधान हत्या दिवस का विरोध करती है क्योंकि वह भी उसी आपातकाल का हिस्सा है। दरअसल 25 जून को इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को 50 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा और आपातकाल को लेकर इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। हमारा चीफ मिनिस्टर और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का सुप्रीमो ममता बनर्जी जी ने क्लियर करके बता दिया, जो हुआ था वो एक टाइम था, एक स्टेप था। उसका जो मूल्यांकन है वो इतिहास करेंगे, लेकिन ये भाजपा उसका ऊपर जो पॉलिटिक्स कर रहा है उसका कोई हक नहीं है, क्योंकि अभी संविधान का जो मेन स्पिरिट है, आत्मा है, उसका ऊपर बीजेपी हैमर कर रहा है। तो संविधान को जिस तरह से हत्या किया जा रहा है अभी इस वक्त, तो वो भाजपा उसका कोई हक नहीं है संविधान का ऊपर कोई बात करने का। हर तरह से इंडियन जो सिटीजन्स है, भारत का देश, भारत नागरिक, उसका जो हक है, उसका जो अधिकार है, मीडिया का जो अधिकार है, सब सिस्टम, सोसाइटी का, देश का सब सिस्टम का ऊपर ये भाजपा अभी जिस तरह दलतंत्र वो कायम करना चाहता है, वो अभी संविधान का जो मेन स्पिरिट वो बचाना ही आज का दिन में सबसे बड़ा हमारा काम हो गया है। इमरजेंसी का ममता बनर्जी सपोर्टर है। खुद ममता बनर्जी इमरजेंसी का सपोर्टर है। जयप्रकाश नारायण जी को, जेपी जी को ह्यूमिलेट करने का काम खुद किया था विद्यार्थी नेत्री के नाते, इसलिए वो तो करेगी। और इमरजेंसी के दौरान सब हिंदुत्ववादी लीडर, खास करके जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लोग को जेल के अंदर दिया गया है। ये भी ममता कर रहा है। रामनवमी, सरस्वती पूजा, जो हिंदू के लिए आवाज उठा रहा है उसको जेल के अंदर डाल रहा है। 50 साल पहले इमरजेंसी में जो हुआ था आज बंगाल में वही हम लोग देख रहा है। इसलिए ममता बनर्जी इसका ए ब्लैक डे ऑब्जर्वेशन, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी डे ऑब्जर्वेशन, कॉन्स्टिट्यूशन का हत्या दिवस ऑब्जर्वेशन, वो तो विरोध करेगा ही करेगा। शी इज द पार्ट ऑफ द इमरजेंसी। फॉर दैट रीजन शी सेड दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय 25 जून 1975 का वो दिन, जिस दिन देश में लोकतंत्र की हत्या हुई। 50 साल बीत गए। मुझे उन लोगों पे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है जो लोग लोकतंत्र को अपनी जेब में लेकर के घूमते हैं, दुहाई देते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करो। मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि भाई, लोकतंत्र की हत्या करने वाले तो तुम्हारे ही पूर्वज थे, जिन्होंने भारत के इतिहास में इससे काला दिन नहीं हो सकता जब गला घोट दिया गया संविधान का। आज आप जेब में संविधान की कॉपी रख के घूमते हो और कहते हो लोकतंत्र बचाओ। आप भूल कैसे सकते हो वो 25 जून 1975 को, जब लाखों लोकतंत्र के सेनानियों को जेल में डाल दिया गया, बिना कसूर के उन्हें सजा दी गई। 1, 2, 3, 4 महीने की नहीं, 21 महीने तक लोग जेल में रहे और उनके परिवार बेसहारा पड़े रहे। एक एक परिवार से 10-10 लोगों को भी विपक्ष खत्म कर दिया। हर नेता देश का जेल में डाल दिया गया, यहाँ तक कि पूरा का पूरा देश ही बंदीगृह बन गया। ऐसे लोग, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये दिन बार बार याद किया जाए कि फिर कभी
भारत के इतिहास में ऐसा अंधेरा ना आने पाए। ऐसा लोकतंत्र की हत्या करने का कोई अवसर किसी को भी किसी भी सरकार के पास नहीं होना चाहिए। ये पीढ़ियां आज याद कर रही है कि उस समय जो हुआ, उस तत्कालिक सरकार ने जो किया, तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जो किया, केवल सत्ता का लोभ जो था, उसके कारण से पूरे देश ने इस काले अध्याय को देखा। बढ़ते हैं अगली खबर की। विक्रम सिंह मजीठिया की मोहाली कोर्ट में पेशी। पंजाब विजिलेंस ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया को 540 करोड़ रुपए के ड्रग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मोहाली कोर्ट में पेश किया है। मजीठिया पर आरोप है कि उन्होंने मादक पदार्थों के अवैध कारोबार और धनशोधन में शामिल नेटवर्क के साथ कथित तौर पर भागीदारी की थी। इस मामले में विजिलेंस की जांच जारी है। कोर्ट में पेशी के दौरान मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय की गई। अभी तक मजीठिया ने आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की। आदिवासी समाज को बढ़ा हुआ आरक्षण देने की मांग पर बैठक। महाराष्ट्र में आदिवासियों को नौकरी में बढ़ा हुआ आरक्षण देने को लेकर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे की अध्यक्षता में मंत्रालय में बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल, शिक्षा मंत्री दादा भुसे, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके आदि उपस्थित थे। राज्य के पालघर, नासिक, धुले, नंदुरबार, यवतमाल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और रायगढ़, इन जिलों में आदिवासी समाज की संख्या अधिक है। इन क्षेत्रों में आदिवासियों को नौकरी में आरक्षण बढ़ाकर देने की आवश्यकता है। बैठक में शिक्षा मंत्री दादा भुसे और खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने अपनी बात रखते हुए सुझाव दिया है कि आदिवासी समाज को अतिरिक्त आरक्षण देते समय एससीबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी समाज का आरक्षण कम नहीं किया जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की। एनआईए का आतंकी साजिश मामले में एक्शन, 18 जगहों पर रेड। प्रदेश में आतंकवाद को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी आतंकी साजिश मामले में पंजाब में 9, हरियाणा में 7 और उत्तर प्रदेश में 2 स्थानों पर तलाशी ले रही है। एनआईए 18 जगहों पर तलाशी अभियान चला रही है। पंजाब के जालंधर और होशियारपुर के टांडा में एनआईए ने रेड की है। इसी के साथ ही हरियाणा में भी एनआईए ने छापा मारा है। करनाल में भी रेड चल रही है। वहीं हरियाणा के करनाल में एनआईए की रेड के दौरान पता चला है कि करनाल की गली नंबर 19 में जिस घर में कार्रवाई की गई है, उस घर का लड़का यूके में रहता है। सूत्र बताते हैं कि व्यक्ति द्वारा किसी आरोपी को ट्रांजैक्शंस की गई है। इस दौरान जिस आरोपी के खाते में ट्रांजैक्शंस की गई है, वह आरोपी पंजाब से संबंधित है। इसी के चलते हरियाणा के बाद एनआईए की टीम द्वारा रेड की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की। हिमाचल मंडी में भारी बारिश के चलते ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा। राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब नदियों में साफ नजर आने लगा है। मंडी जिले में ब्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। स्थानीय प्रशासन ने नदी के किनारे बसे लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। फिलहाल किसी बड़ी क्षति की सूचना नहीं, लेकिन जलस्तर में और बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान और अधिक बारिश की संभावना जताई है, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। वहीं एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन टीमें तैयार रखी गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंधु ईरान से निकाले गए भारतीय नागरिकों का बयान। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से सुरक्षित निकाले गए भारतीय नागरिक सौरभ ने ईरान में हालात को लेकर बड़ा बयान दिया है। भारत लौटने के बाद उन्होंने कहा है कि मैं अभी ईरान से वापस आ रहा हूं। इस समय वहां की स्थिति सामान्य है, लेकिन कुछ दिन पहले माहौल काफी खतरनाक था। वहीं उन्होंने कहा है कि भारतीय दूतावास ने बहुत अच्छा काम किया है। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंधु के तहत सैकड़ों भारतीय नागरिकों को ईरान से सुरक्षित स्वदेश वापस लाया गया। Saurabh Singh Chauhan, I am coming back from Iran. Right now the situation is normal there, but before some days
the situation was very dangerous. Near you, you will hear the sounds of so many explosions for missiles, bombs, everything. But our Indian embassy, they did the great work. They brought all the Indians back, and words are not. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरजेडी में शामिल हुई पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा। बिहार में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा ने अपने पति विजय कुशवाहा के साथ राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मौजूदगी में दोनों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। रेणु कुशवाहा के साथ ही पप्पू यादव की जाप के प्रदेश अध्यक्ष रहे रघविंद्र सिंह कुशवाहा समेत कई नेता आरजेडी में शामिल हो गए हैं। रेणु कुशवाहा इससे पहले जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी में रह चुकी हैं। बिहार की राजनीतिक में वो एक बड़े नेता के तौर पर जानी जाती हैं। ऐसे में आरजेडी में उनका जाना पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है, तो वही एनडीए के लिए एक बड़ा झटका है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का बड़ा दावा। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने आगामी 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि भाजपा इस बार 50 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि 2021 में भाजपा का चक्का 77 सीटों पर अटक गया था। उन्होंने 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन जनता ने जवाब दे दिया। अब मैं आपसे वादा करता हूं कि 2026 में भाजपा की सीटें 50 से नीचे रहेंगी। यह भविष्यवाणी नहीं, जनता के प्यार और आशीर्वाद का भरोसा है। वहीं इस अवसर पर डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र में पिछले 11 वर्षों में हुए विकास कार्यों पर आधारित एक पुस्तिका साइलेंट रिवोल्यूशन का विमोचन भी किया गया। यह क्षेत्र अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र है, जहां वे 2014 से लगातार तीसरी बार सांसद हैं। अब वक्त हो चलो दर्शकों ब्रेक खबरें की बात ही खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।